Good evening, everyone. Good evening. Okay, good evening, everyone. स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर. So please let me know audio video is it clear, and I will also check at my end. So good evening. Yes, from my end it is working. Please let me know whether it is working from at your end or not. Okay, so today we are going to solve the previous year paper, or we can say कि the recently conducted paper of MP सेट जो आपका अभी अगस्त 2027 2023 में conduct हुआ है. The exam date was 27th of August, and here I am going to provide you the complete solution of computer science paper. I hope it is going to help you in the upcoming examination. साथ में आपको help करेगा to challenge the question which are incorrect, and it will also help you to analyze your performance in the examination. And if you think it is as helpful, please watch the video till end and give your feedback into the comment box. It will be very helpful for me. So this one thing you have to do for me. So let's start. Okay, but before starting the session, let me tell you, I'm Rashmi Vishwakarma. ठीक है, Rashmi Vishwakarma. I'm educator, PhD scholar, mentor, content creator, and YouTuber. I am working as educator for the UGC NET category since last 5 years, and I worked with Unacademy. I worked with Edu Uncle, and I also worked as assistant professor at GGITS Jabalpur. So this is my brief profile. Now you can also access my free content on my YouTube channel, which is you are currently logged in, but you can also access my content from the app, that is Rashmi @JRF Guru. So link of that app is given in the description box. For the upcoming examination, obviously for the NET exam or for any teaching exam, it is going to be helpful. ठीक है, तो ये आपका आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए. लिंक ऑफ द ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. करेक्ट. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. ठीक है, तो आज का जो सेशन है, वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर ऑफ एमपी सेट एग्जामिनेशन. ओके, चलिए. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव. A system call is invoked by. So a system is call is invoked by the software interrupt. The first option, I hope screen is visible. System call is invoked by the polling, software interrupt, instruction, or the jump. So the correct answer is
सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको हमने कई बार सॉल्व किया है बट बहुत अच्छे फॉर्म फ्रेमिंग में दिया था कि सपोज वी हैव 12 आइडेंटिकल रिसोर्स, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस हेयर, एक मिनट पे पैन मेरा इश्यू कर रहा है, ओके तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको करेक्ट कर लूं। Still not working properly. So here we have how many resources are there, ठीक है, तो यदि आप रिसोर्स की बात करें यू कैन सी वी हैव 12 resources and 3 process there, P1, P2 and P3. So now we have the maximum claim of the processor is 10, 5 and 3, ठीक है, maximum demand कितना है 10, 5 and 3. Current allocation is 8, then 2 and then 1, ठीक है. So how much resources is allocated and how what is the current need that we have to find out, ठीक है, वो हमको यहाँ पर find out करना होगा. ये पेन आज इशू करेगा भाई, चलिए मैं इसको ओरली बता देती हूँ. वी हैव 12 आइडेंटिकल रिसोर्स, इफ वी हैव 12 आइडेंटिकल रिसोर्स, ठीक है, इफ वी हैव 12 आइडेंटिकल रिसोर्स, ठीक है, तो इन द out of 12 the process P1, ठीक है, how much resource is allocated for the process P1, we have 10 resources are allocated, ठीक है, we have 10 resources are allocated for P2. सॉरी फॉर दिस, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं. So we have 12 identical resource. Now process P1, P2, P3 are there. And the maximum demand of P1 कितना है? आप बोलेंगे the maximum demand of P1 is, ठीक है, maximum demand of P1 is 10. ठीक है, 10 ही max need बनेगी किसकी? P1 की. Then max need of P2 कितना है? 5 है. For P2 it is 5. ठीक है, simply 5. And then we have the max need of P3. P3 is 3. Now currently allocation is 8. So need क्या होगा? 10 minus 8. The need of P1. सीधे need निकालिए. तो P1 का need क्या बनेगा? 10 minus 8 it will be 2. ठीक है. P2 का need क्या होगा? So currently P2 is holding 2 resources and maximum need is 5. So 5 minus जब आप 2 करेंगे it will give you 3. Okay, it will give you 3. And for P3 the maximum need is 3 and allocated is 1. So still the need is 2. So need क्या बनी? 2, 3, 2. 2, 3, 2. Now see if the need is 2, 3, 2. So how many resources are available to satisfy this need? Total number of resources is 12. How much is allocated? 8. How much is allocated? 8 plus 2 plus 1. So it will be
11 is allocated. So on out of 12, 11 is allocated. So how many resources will be available? How many resources will be available? It is only one. Okay, only one resource is available. Can I satisfy any need? Can I satisfy any of these need? So answer है no. है ना, हम P1 का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर सकते बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ P1 कितना है, 2 है. रिक्वायरमेंट ऑफ P1 इट इज 2 एंड हमारा करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज कितना है भाई, इट इज ओनली, ठीक है, इट इज ओनली 1. वी कैन नॉट सेटिस्फाई 3, वी कैन नॉट सेटिस्फाई 2. तो फाइनल आंसर इज, ठीक है, आपका यहाँ जो आंसर है वो क्या बनेगा, द ठीक है, द सिस्टम स्टेट इज अनसेफ स्टेट, सिस्टम स्टेट अनसेफ है एंड मिनिमम वन मोर रिसोर्स इज नीडेड टू मेक इट सेफ. सो आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड 3. आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 2 एंड 3. इज इट क्लियर? ओके, आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 2 एंड 3. कैमरा इशू, पैन इशू चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी. ओके, so next we have next question. हाँ, one thread immediately terminate the target thread, then this is called the asynchronous cancellation. तब आप इसको क्या बोलते हो, asynchronous cancellation. Okay, now the next most famous definition. The consider the situation where the several process access and manipulate the same data concurrently, and the outcome of execution depend on the particular order in which access takes place. So this situation is called deadlock, process synchronization, race condition और unsafe state. So this is what called race condition. इसको आप क्या बोलते हो, race condition. The output depends on the order of execution. तो हम इसको बोलते हैं race condition. Okay, now we have one more question based on the TLB. हमेशा आपका popular question रहा है, ठीक है. तो TLB का जो फॉर्मूला होता है, TLB का फॉर्मूला होता है hit ratio plus hit ratio multiplied by TLB access time plus memory access time plus miss ratio TLB access time and twice of memory access time. ठीक है, and twice of memory access time. So if I will use this one, ठीक है, तो यदि मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो क्या हो जाएगा, TLB का हिट रेशियो है 0.98, 0.98, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, TLB एक्सेस टाइम है 20 एंड मेमोरी एक्सेस है 100, डायरेक्टली 120 से मल्टीप्लाई करिए, टाइम सेव करना होता है एग्जाम में. 120 प्लस मिस रेशियो क्या बनेगा, मिस रेशियो बनेगा 0.002 एंड मल्टीप्लाई करेंगे TLB एक्सेस टाइम ट्वाइस ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम, तो इट विल बिकम 220. ठीक है, 220. तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 122 नैनो सेकेंड. आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 122 नैनो सेकेंड, है ना. सिंपल था क्वेश्चन. चलिए, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एज इट इज पूछा गया था, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है. तो the computer system has 6 identical resources. There are the n process competing for them. Each process need the 2 resources. ठीक है, what will be the maximum value of n so that system will be deadlock free. क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है डिमांड शुड बी लेस देन नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्लस नंबर ऑफ प्रोसेस. व्हाट इज टोटल डिमांड, we have n process and every process need the 2 resources. तो टोटल डिमांड बन जाएगी 2n. number of resources it should be less than number of resources 6, number of process is n, number of process is n. When you will solve this equation, so you will get 2n minus n, it should be less than 6, or we can say, ठीक है, हम कह सकते हैं कि n should be less than 6. so n should be less than 6. आंसर क्या बनेगा, 5. आंसर क्या होगा, 5. दैट्स इट, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. द क्रिटिकल रीजन इज, पढ़ाया है, ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन इज अ प्रोग्राम सेगमेंट वेयर द शेयर्ड रिसोर्सेस आर एक्सेस्ड. ऑप्शन डी.
where the shared resources are accessed. Virus that mutate in every infection, polymorphic virus, है ना, polymorphic होता है. Now we have the blank space represent the commonly used group of code. क्या बोलते हैं? Function, group of code. Then, sorry, a system uses paging and segmentation. The virtual address space consists of 8 segment. ठीक है, number of segment. देखिए जो virtual address have the two parts. पहला part क्या होता है कि it is divided into two parts, segment and offset. Segment and offset. तो number of segment के लिए कितनी bits लगेगी? If 8 segments are there, we will need 2 power 3 bits. मतलब 2 power 3 means 3 bits are required for the segment because 2 power 3 is equal to 8. So 3 bits are required for the segment. ठीक है, 2 power 3 किसके इक्वल होता है? 8 के. तो 3 bits are required for the segment. And offset के लिए each segment can be up to 2 power 29 bytes long. 2 power 29 bytes long. तो 2 power 29 bytes long बनेगा आपका offset. So 29 bits for the offset. So address will be 29 plus 3, आंसर will be 32. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन था बट एक डिफरेंट पैटर्न का. तो it will be 32. Is it clear? ठीक है, ये आपका हो जाएगा 32. Now see the next question. Again एक simple question है. Requirement which specify constraint imposed on the software is called the non-functional requirement. ठीक है, non-functional. Very good. Exchange of data between two modules in a structure chart. ठीक है, exchange of data मतलब हम यहाँ between the modules की बात कर रहे हैं. और between the modules means it is data couple. इसको आप क्या बोलोगे? जो चार्ट आप यूज करते हो that is called the data couple. Now if P is a risk probability, L is the loss, डायरेक्टली फॉर्मूला है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है. तो रिस्क एक्सपोजर कैसे निकालते हैं? Simply multiply them. So option B is correct. ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन B is correct. If you know the answer, you can answer it. ठीक है, अब यहाँ इन्होंने बोला cost of software maintenance is very high. A large amount of software life cycle cost is expanded in the maintenance expended होगा actually in the maintenance activity. The maximum effort is spent on which of the following maintenance activity. ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट किस एक्टिविटी में लगता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव. ठीक है, सो आंसर होगा करेक्टिव. इन करेक्टिव मेंटेनेंस, बिकॉज करेक्टिव मेंटेनेंस रिक्वायर द इमीडिएट सॉल्यूशन, है ना. करेक्टिव कब होता है? व्हेन देयर इज अ बग एंड इफ वी वांट टू कीप आवर सॉफ्टवेयर करेक्ट, so we have to immediately remove them. तो सबसे ज्यादा जो एफर्ट है that we spend into the corrective maintenance. ठीक है, corrective maintenance. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऑल एक्टिविटी इट इज फ्रॉम द CPM PERT. ठीक है, जो आपका ऑप्टिमाइजेशन वाला पोर्शन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, CPM PERT. ठीक है, तो CPM PERT में आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि ऑल एक्टिविटी विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव स्लैक टाइम ऑलवेज इक्वल टू 0. ये किसके इक्वल टू होता है? 0 के इक्वल होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था which of the following architecture characterized by the series of transformation on orderly defined set of input. ठीक है, तो यहाँ बात किया सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफाइंड सेट ऑफ डेटा, इनपुट डेटा. तो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर नहीं होता है एक्चुअली, वी हैव टू स्पेसिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन. तो इट इज नोन एज द डेटा फ्लो आर्किटेक्चर. क्या आंसर क्या बनेगा? डेटा फ्लो आर्किटेक्चर. चलिए देखिए, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ट्विस्ट किया हुआ है ना. सो आप प्रोग्राम हैव टू इंटीजर इनपुट, 2 इनपुट है एंड ईच ऑफ 32 बिट वर्ड. देन हाउ मेनी पॉसिबल टेस्ट केस आर in the program there?
So we have two integer. For the first integer, number of test cases will be 2 power 32. For the second integer, number of test cases will be 2 power binary test cases होते हैं ना, दो टेस्ट केस आप अप्लाई करते हो, ट्रू और फॉल्स, तो इट विल बी अगेन 2 power 32. ठीक है, सो 2 power 32, 2 power 32 विल बिकम 2 power 64. आंसर होगा सी, आंसर होगा सी. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरा पेन आज खराब है ना. चलिए, सी. अब बात कर लेते हैं. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कोकोमो मॉडल. ठीक है, कोकोमो मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम एफर्ट. मतलब यहाँ इन्होंने आपको जो हम हमेशा बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर विल बी गिवन, इस केस में गिवन नहीं है भाई. देख रहे हो, इस केस में एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर गिवन नहीं है. तो अब आपको क्या करना है, यू शुड नो दिस टेबल. ठीक है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए. आपको कौन सा टेबल याद रखना है. ठीक है, मैंने आपको कई बार शेयर किया है. तो दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, यू कैन सी, है ना भाई. देखिए, एफर्ट फॉर बेसिक कोकोमो मॉडल या किसी भी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, here you have this table, you have to remember. Okay, table, we have three types of model. ठीक है, organic, semi detached and embedded. So in organic model, the value of AB is 2.4, value of BB is 1.05, CB is 2.5 and D is 3038. Semi detached और embedded, है ना. ये अभी देखिए दो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी में. अच्छा, प्लीज लेट मी नो व्हाट वैल्यू वी विल पिक हियर. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रोग्रामर एफर्ट फॉर द ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट. ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट यदि आपको लेना है तो कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर रेफर करेंगे. वी विल रेफर द वैल्यू फॉर द ऑर्गेनिक 2.4 एंड 1.05, 2.4 एंड 1.05. ओके, तो एक क्वेश्चन ये आपका सॉल्व होता है ना. अब देखिए यहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द बेसिक कोकोमो मॉडल एफर्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम इज गिवन बाय. ठीक है, एफर्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तो अगेन फॉर्मूला बताना है एम्बेडेड सिस्टम के लिए. तो एम्बेडेड के लिए वैल्यू होती है 3.6 KLOC 1.20. ओके, सेमी डिटेल्स के लिए फॉर्मूला बनता है 3.0 KLOC 1.120 एंड दिस इज फॉर द ऑर्गेनिक. ठीक है, तो एक ही टेबल से दो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हुए हैं. एक ही टेबल से दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर फ्रेम हुए हैं. तो सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं हमेशा आपको सिखाया है. ठीक है, यदि मैं ऑर्गेनिक मॉडल की बात करूं तो क्या बोल रहे हैं 2.4 इंटू KLOC कितना दिया है 10, 10 पावर कितना लिखना है 1.05, 1.05. ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. तो वी हैव टू राइट 1.05. तो नाउ 2.4, 2.4 मल्टीप्लाइड क्या लिख दोगे 10, इसको ब्रेकअप कर रहे हैं 10, है ना, एंड मल्टीप्लाइड विद 10 पावर 0.05. ठीक है, ये कितना बचेगा 0.05. अच्छा, मैं बहुत ज्यादा यदि नहीं भी कैलकुलेशन करूं तो इवन दो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई 24 into 10, आई विल गेट 24. नाउ आई कैन गो विद द नियरेस्ट वैल्यू. मुझे नहीं करना पूरा कैलकुलेशन, आई कैन गो विद द नियरेस्ट वैल्यू. तो 13 इज नॉट नियरेस्ट, 41 इज नॉट नियरेस्ट, 55 इज नॉट नियरेस्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा 26.9, 26.9. ठीक है, 24 मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर 5/20 मिलेगा आपको, 1/20, 5 बाय आप 100 लिखोगे, है ना. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर एंड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
it will give you the number approximately 26.9. तो डायरेक्टली ऑप्शन से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। चलिए भाई बताइए, अभी तक कोई डाउट इतने क्वेश्चंस में? एक बार हेलो बोल दीजिए, लेट टू नो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। And anybody from MP set who has given the examination for the MP set? नहीं? हेलो शबाना मैम। ओके ओके, थैंक यू। भाई एक बार सभी लोग यहाँ मेरा प्रोत्साहन कर दे, उत्साह वर्धन वर्धन कर दे, है ना, so that मुझे थोड़ा सा लगे कि हाँ यहाँ आप लोग प्रेजेंट हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड मैम। चलिए, तो आई होप यू आर गेटिंग, है ना, कैसे पेपर सॉल्व करना था और कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए और इनकरेक्ट किए। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। A software have the 5 failures in 100 tests. Okay, a software have 5 failures in 100 tests during the 10 days of the testing. मतलब टोटल जो टेस्ट 10 डेज में परफॉर्म किए गए वो कितने थे? 100 थे, और उसमें से फेल्यूर कितना मिला? सिर्फ 5। अब ये बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द गुड एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ओवर द नेक्स्ट डे। ठीक है, यदि मैं कल फिर से टेस्टिंग करूं, पास्ट 10 डेज का मेरे पास एक्सपीरियंस है, लास्ट 10 डेज का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इन दैट 10 days I have approximately performed 10 tests per day. So if I am going to perform the same test again, what will be the probability of failure? What will be the probability of reliability? ठीक है, यही पूछना चाह रहे हैं, a good estimate of reliability of software over the next day। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वी हैव 5 फेल्यूर इन 100 टेस्ट, तो फेल्यूर रेट निकाल लीजिए। आप यहाँ पर क्या निकाल लीजिए? फेल्यूर रेट क्या बना, है ना, फेल्यूर रेट क्या बना आपका यहाँ पर? फेल्यूर रेट है 5 अपॉन, ठीक है, 5/100। 5/100 मतलब ये आपको दे देगा 0.05, 0.05, ठीक है, इट विल गिव यू 0.05। ओके, ये आपको मिल गया फेल्यूर रेट। तो नेक्स्ट 10 डेज में आपको कितना फेल्यूर मिला होगा? नेक्स्ट 10 डेज में आपको जो फेल्यूर मिला होगा, है ना, ये आपका सिंगल डे का बना, तो नेक्स्ट 10 डेज में ये बना होगा 0.5, ठीक है, 0.5। अब अगेन मुझे निकालना है फॉर द सिंगल डेज, आउट ऑफ 10 डेज का मैंने निकाला 0.05, तो फॉर द सिंगल डेज अगेन आई विल डिवाइड द नंबर ऑफ डे, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि इन 10 डेज द टोटल फेल्यूर वाज 0.5। तो अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं, यहाँ आज मेरा पेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, प्लीज डोंट माइंड, 0.5, तो इन सिंगल डेज व्हाट विल बी द फेल्यूर रेट या रिलायबिलिटी क्या होगा? 0.5 को हम अगेन 10 डेज 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल अगेन बिकम 0.05। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.05। फेल्यूर रेट जो है ऑब्वियसली सिंगल डे के लिए है, तो आप इतना निकाल के भी आंसर कर सकते थे 0.05, और अदरवाइज फेल्यूर रेट सपोज 2 डेज के लिए पूछा होता तो फिर हम मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर देते, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते, तो ये कॉमन अप्रोच है, ठीक है। चलिए, नाउ एनीबडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम? ठीक है, आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट लाइव हैं, तो कैन यू आंसर दिस? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, आंसर दीजिएगा, मैं आती हूँ पानी लेकर।
ओके, नो इश्यू अपूर्वा मैम, आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कैसा कर रहे भाई, ये तो हमको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो वर्स्ट केस होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर फॉर द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इन विच केस, जब आपका डेटा ऑलरेडी शॉर्टेड है, ऑलरेडी शॉर्टेड है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन एबीएल ट्री? अगेन यू कैन आंसर, what is an ABL tree? A tree which is balanced and is height balanced tree. A tree which is unbalanced and height balanced tree. A tree have 3 children. A tree have a tree with at most 3 children. Huh. So it is now which is an ABL tree? Which is an ABL tree? An ABL tree is balanced tree and it is called the height balanced tree. है ना? ये तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं। Now see, which of the following design algorithm is used in quick short? क्विक शॉर्ट में कौन सी डिजाइन एल्गोरिथम यूज करते हैं? ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, हैश टेबल और पार्सिंग। इट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर। ग्रीडी जो आपकी जो क्विक शॉर्ट है किस अप्रोच पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर, है ना। हैश टेबल एंड पार्सिंग तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच हमेशा तब होगी व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर समथिंग ऑप्टिमल। जब भी आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढते हो वो ग्रीडी होता है। ठीक है, लाइक जो आप हफमैन कोडिंग करते हो, हफमैन कोडिंग इज अ टाइप ऑफ ग्रीडी, बट हियर इट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। हम लिस्ट को डिवाइड करते हैं और री शॉर्ट करते हैं, अगेन शॉर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। नाउ इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। ठीक है, इंसर्शन एट ओनली वन एंड रियर एंड, डिलीशन एट ओनली वन एंड फ्रंट एंड। ठीक है, एंड इंसर्शन एट बोथ एंड्स, रियर एंड द फ्रंट, ऑल ऑफ दी अबव। तो सी, जब मैं डी क्यू की बात करती हूँ, ठीक है, अब हम यहाँ पर डी क्यू को यदि हम बात करें, पहले तो मैं क्यू की बात करती हूँ। सो इन द क्यू जो इंसर्शन है दैट वी परफॉर्म फ्रॉम द रियर पोजिशन। ठीक है, वो हम कहाँ से परफॉर्म करते हैं? रियर पोजिशन। और इंसर्शन डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है। सिंपली क्यू। नाउ in DQ, I can perform insertion as well as deletion from both the end. ठीक है, and I can perform insertion and deletion from both the end. ठीक है, तो ये आपका बन गया DQ। Now इसमें बोला जा रहा है कि input restricted, input restricted means is that now I can perform insertion from only one end that is all already defined the rear end। ठीक है, rear already defined है जहां से आपको input करना है। You can do the deletion from both end, but input restrict कर दिया है। इसी तरीके से output restricted भी होता है। तो input restrict किया means we can perform input only from the या insertion from only one end and that is what the rear end, उसको आप क्या बोलेंगे? rear end। is it clear? is it clear? है ना। और यदि आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड बोल दिया जाए तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में भी वन एंड से आउटपुट होगा, दैट इज द फ्रंट एंड। वी कैन नॉट परफॉर्म द आउटपुट फ्रॉम द रियर एंड। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। solve this question. What is the number of edges present in the complete graph? The n vertices. आंसर होगा n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2। Which of the following sorting algorithm has the lowest worst case complexity? Worst case complexity, that is lowest। ठीक है, तो for the merge sort, merge sort के लिए आपकी जो complexity है, for the merge sort the complexity is n log n, n log n। बबल शॉट एन स्क्वायर। ठीक है, क्विक शॉट एन स्क्वायर, सिलेक्शन शॉट एन स्क्वायर। आंसर क्या बनेगा? मर्ज शॉट। आंसर होगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम किसका होता है? इट इज मर्ज शॉट। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
बेसिकली यदि आपने मेरा स्टैक एंड क्यू का यदि क्लास देखा है, ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट में भी आ चुका है, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में रिपीट हुआ था, और सेम क्वेश्चन अभी आपके एमपी सेट में रिपीट हुआ। ठीक है, तो व्हाट वी विल से कि इफ देयर इज अ सर्कुलर क्यू, यदि सर्कुलर क्यू है तो हम कैसे टेस्ट करते हैं कि आपका जो क्यू है वो फुल है या जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी के लिए आप कंडीशन चेक करते हो कि जो फ्रंट है, फ्रंट इक्वल टू रेयर। ठीक है, फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो आपने क्या बोला कि इट विल बी एम्प्टी। और है ना, और यदि मैं यहाँ बात करूं कि फुल कब होगा, तो जब आप नया रेयर पोजीशन कैलकुलेट करते हो। रेयर पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेयर पोजीशन में +1 करेंगे एंड मॉड n निकालेंगे, तो उससे मुझे नेक्स्ट पोजीशन मिलेगी जहां मुझे इंसर्ट करना है। बट इफ द नेक्स्ट पोजीशन विल बिकम इक्वल टू फुल, यदि नेक्स्ट पोजीशन भी फुल के इक्वल बन जाए तो उसको आप बोलने लगते हो, ठीक है, इट इज क्यू इज फुल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, है ना, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, सॉल्व दिस। Which of the following is an application of the stack finding factorial tower of Hanoi infix to postfix conversion and all of the above? So it is infix to postfix. ठीक है, next we have prefix notation is also known as, prefix is also known as the Polish notation, Polish notation. Next question था, what will be the value of n for the Turing machine defined using n tuples? ट्यूरिंग मशीन के लिए एंड की वैल्यू क्या होती है, सो वी हैव 7 टपल्स, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ स्टेट, है ना, देन फाइनल स्टेट, देन इनपुट सिंबल, देन स्टैक सिंबल, इनिशियल स्टैक सिंबल एंड ट्रांजिशन फंक्शन। सो टोटल 7 टपल्स आर देयर, टोटल 7 टपल्स आर देयर। ठीक है, और यदि यही क्वेश्चन ऑटोमेटा के लिए पूछते तो 5 टपल्स आर देयर, 5 टपल्स। ठीक है, नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है यू कैन चैलेंज इन फ्यूचर, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है कोई भी मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज वी हैव एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, मिनिमल स्ट्रिंग बनाइए। ठीक है, ए बी, ए और बी को रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल बी से, तो यू विल गेट ए बी। ठीक है, ए बी, एक आपको स्ट्रिंग ए मिलेगा, और यहाँ से यदि आप बी से रिप्लेस कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग बी बी। ठीक है, तो वी हैव टू मिनिमल स्ट्रिंग, वी हैव टू मिनिमल स्ट्रिंग। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या बोला गया, ऑड नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है बट सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वी विल से इट इज इनकरेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ ए मिसिंग है क्या, है ना, सो ए इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर बी भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आप एक केस और देख सकते हो, इसको ए बी को रिप्लेस कर दीजिए ए एस से, ए बी को रिप्लेस कर दीजिए ए एस से, तो इट विल बिकम ए ए एंड एस, और एस को रिप्लेस कर दीजिए बी से, सो नाउ नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, तो ये भी आपका मैच नहीं होगा। इवन नंबर ऑफ ए इवन नंबर ऑफ बी बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑड नंबर ऑफ ए ऑड नंबर ऑफ बी है। ऑड नंबर ऑफ ए इवन नंबर ऑफ बी, ए बी कंडीशन मैच नहीं हो रहा, तो यस यू कैन चैलेंज इट। ठीक है, चलिए, ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है यूनिवर्सल लैंग्वेज, रिकर्सिव, रिकर्सिवली इनुमरेबल एंड नॉन रिकर्सिव, तो इट एक्सेप्ट रिकर्सिवली इनुमरेबल, है ना, एंड रिकर्सिव इज अ सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इनुमरेबल। नॉन रिकर्सिव तो ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं है। यूनिवर्सल लैंग्वेज इज अ सुपरसेट ऑफ रिकर्सिवली, ये रिकर्सिव के भी ऊपर आ जाता है, सो आंसर क्या हो जाएगा, रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, नाउ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर, तो जब भी कंपैरिजन होगा रेगुलर नहीं होगा, जब भी कंपैरिजन होगा रेगुलर नहीं होगा। Here I have to do the comparison between A and B.
A and B, I will say it is not regular, ये regular नहीं है. For this a power n plus 3, I can write the regular expression भाई, मैं इसके लिए regular expression लिख सकती हूँ. तो I will say कि भाई ये तो आपका, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड वी हैव होल क्लीन क्लोजर, होल क्लीन क्लोजर. तो ये आपका हो जाएगा कि इट इज रेगुलर. और सिंपल तरीका बताऊं, शॉर्टकट बताऊं, तो इसमें आप क्या कर दो, n की वैल्यू 0 पुट कर दो ना, n की वैल्यू 0 पुट करो, तो यू विल गेट a पावर 0 मतलब 1, a पावर 0 प्लस 3 मतलब a पावर 3. नाउ कैन यू ड्रॉ द डीएफए फॉर a पावर 3? क्या आप a पावर 3 के लिए डीएफए डिजाइन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं. We can design the DFA for this. So it is regular. It is regular when I will put n equal to 0. दोनों ही केस में मुझे रेगुलर मिलेगा. तो आंसर होगा ओनली ए. क्या आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए. ओके, चलिए. नाउ एनपी क्लास, एनपी कंप्लीट. ठीक है, अब देखो, NP complete. Solution can be verified easily. A quick algorithm to solve this problem can be used to solve all the NP problem easily or quickly. It can be solved in polynomial time. तो वी हमको एक वो चार्ट याद रखना है. ठीक है, एनपी, ये आपका एनपी होता है. एक ग्राफ मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है एनपी, और इसको आप इस तरीके से बनाते हो. तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द एनपीसी. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल दी एनपीसी. ये जो एनपी हार्ड है, ये एनपी हार्ड, और एनपी का जो इंटरसेक्शन है वो आपका बनता है एनपीसी. ठीक है, हाँ, वो आपका बनता है एनपीसी. भाई राइटिंग पर मत जाइएगा प्लीज, पेन सही नहीं है. तो इट इज एनपीसी. ठीक है, ये आपका हो जाएगा एनपीसी. तो नाउ वी नो दैट एनपी प्रॉब्लम, एनपीसी अल्टीमेटली क्या हुई, एनपी प्रॉब्लम है. तो इट कैन बी वेरीफाइड इजीली, है ना, पॉलिनोमियल टर्म में सॉल्व होगी, बट इट कैन बी सॉल्व वेरीफाइड इजीली. क्विक एल्गोरिथम जो अदर्स प्रॉब्लम को भी क्विकली सॉल्व कर पाए, एंड इट कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम. तो ऑल ऑफ दी अबव, है ना. चलिए, ये हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, किया इसको. ओके, consider the following grammar. Consider the following grammar. Now this is the grammar. Which of the following statement can be derived by this grammar? ठीक है, मैं सिर्फ इतना काम करूँ कि मैं सब्स्टिट्यूशन देखती हूँ, व्हाट सब्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल. ये क्या सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है. तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो बी ए. ठीक है, यहाँ कहीं बी ए है क्या? बी ए है नहीं है, आई कैन नॉट डू दिस. बी बी, क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सो हियर वी डोंट हैव बी बी, वी डोंट हैव बी बी. ए बी, ए एंड बी यहाँ तो नहीं है, बट हियर आई हैव ए बी. तो ए बी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ए बी सी, है ना. ए बी को किससे सब्स्टिट्यूट कर दो? स्मॉल ए बी सी से. तो पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? ए बी सी. क्या ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सो अगेन नो कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल, सो फाइनल आंसर विल बी बी. है ना, कितना इजी था. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी. फाइनल आंसर विल बी बी. इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. A non-recursive predictive parsing is constructed using the stack. Non-predictive parsing, ठीक है. तो जो stack है, पासिंग टेबल, पासिंग टेबल हम बाद में बनाते हैं एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट. टर्मिनल, टर्मिनल we store in the passing table, and epsilon we use in the passing table. So sequence of grammar symbol, it is stored in the stack.
ठीक है, किसमें स्टोर किया जाता है? इन द स्टैक। ठीक है, चलिए डेंजलिंग पॉइंटर, डेंजलिंग मतलब भटकता हुआ पॉइंटर या डेंजलिंग रेफरेंस कब आता है? डेंजलिंग रेफरेंस occurs when there is a reference to storage that has been deallocated। ठीक है, लेकिन अपडेट नहीं हुआ, हमने किसी रिसोर्स को, ऑब्जेक्ट को एक स्टोरेज अलोकेट किया था, बट वी हैव डीअलोकेटेड दैट मेमोरी, बट जो टेबल है, जो टेबल आपने प्रिपेयर किया, इट इज नॉट अपडेटेड, सो इट विल क्रिएट द डेंजलिंग रेफरेंस। ये क्या क्रिएट करता है? डेंजलिंग रेफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट क्रिएट द डेंजलिंग रेफरेंस। चलिए, ये क्वेश्चन एकदम गलत है ना? इसलिए गलत है क्योंकि जब हम एक डीएजी बनाते हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो here we should have a binary operator। ठीक है, और ये क्या मिल रहा है आपको? यूनरी। तो दैट्स वाई, ठीक है, इसमें आपका मतलब आप चैलेंज कर सकते हो, और यदि यहाँ आपका ऑपरेटर होता देन वी कैन सॉल्व इट। यदि मुझे पता होता कि यहाँ एक और ऑपरेंड क्या है, वी कैन सॉल्व इट। ओके, तो यस, यू कैन चैलेंज इट। चलिए भाई, हाँ, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है गेट का, नेट का, इसरो का। क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट कोड, सॉरी इंटरमीडिएट कोड। तो इंटरमीडिएट ट्रिपलेट्स भी होते हैं, क्वाड्रपल्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट ट्रिपलेट्स भी होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोएक्सियल केबल 10 base 2 used in Ethernet is also known as, ठीक है, इसको आप बोलते हो थिन कोएक्सियल केबल। ठीक है, इसको आप बोलते हो थिन। ट्विस्टेड पेयर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, थिन कोएक्सियल केबल दैट इज 10 base 2, ये आपके ईथरनेट में यूज होता है। ठीक है, चलिए, नाउ इसका आंसर आप लोग करेंगे। व्हाट इज द आंसर फॉर द 92? कितने लोग जाग रहे हैं ये मुझे पता चलेगा। विच लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कंप्रेशन? गुड इवनिंग है सभी को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। अरे, which layer of OSI reference model responsible for data compression, data encoding, data decoding? It is presentation। It is presentation। डेटा कंप्रेशन के लिए देखिए, डेटा सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट पर होता है, डेटा सेगमेंटेशन होगा। ठीक है, चलिए, now propagation of electromagnetic signal, it depends on the both frequency of the signal। कैसे लिखते हो? प्रोपेगेशन इज स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप प्रोपेगेशन स्पीड निकालते हो, तो जो टी होता है 1/t, 1/t किसके इक्वल होता है? 1/t इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। ठीक है, एंड ऑब्वियसली द कम्युनिकेशन मीडियम, तो बोथ। नाउ ठीक है, which generation of cellular network is completely based on the packet switching technology? ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका जीपीआरएस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जीपीआरएस टेक्नोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन द पैकेट स्विचिंग, एंड जीपीआरएस आपका इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2G। ठीक है, 2G को हम बोल सकते हैं 2.5G में आया था, तो इट इज 2.5G या 2G। हाँ, करेक्ट मैम, वेरी गुड सोनिया मैम। भाई थोड़ा सा एक्टिव, मुझे समझ में आया सोनिया मैम, वो सोनिया मैम जग रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द ओवरले नेटवर्क ऑन द टॉप ऑफ पब्लिक नेटवर्क? ठीक है, पब्लिक नेटवर्क के टॉप पर एक लेयर लगा दी जाती है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ठीक है, आपका पब्लिक नेटवर्क में जब आप प्राइवेट सेक्शन यूज करते हो, पब्लिक नेटवर्क में जब आप प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन। ठीक है, इसका डेफिनेशन है वीपीएन का। इट इज नॉट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी हम फायरवॉल पर लगाते हैं। डोमेन नेम सिस्टम इज टू एक्सेस द पर्टिकुलर रिसोर्स, एंड रेडियस इज नथिंग लाइक दैट ना, तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। इट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
ठीक है, ये आपका क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, नाउ सी, यहाँ क्या पूछा गया, द स्टेटस HTTP एरर स्टेटस आता है ना आपको, 400, 500, 404 एंड 403। तो जो फॉरबिडन स्टेटस मिलता है वो आपको मिलता है 403 के साथ। 404 कंफ्यूज करता है, बट फॉरबिडन स्टेटस आपको मिलता है 403 के साथ। ठीक है, नाउ सी, इन डेटा कम्युनिकेशन डेटा रेट किस पर डिपेंड करता है? इन डेटा कम्युनिकेशन डेटा रेट डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ, है ना, आप बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करते हो द लेवल ऑफ सिग्नल प्लस नॉइज लेवल। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्नल एंड द नॉइज लेवल, so it will be all of the above, सभी पर डिपेंड कर। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द डाउनलोडिंग एन uncompressed data 1 MB over the 32 KB will take? 1 MB और 32 KB, भाई टोटल फाइल का साइज क्या है, 1 मेगाबिट, और जो स्पीड है वो क्या है, 32 किलोबाइट्स। तो डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो 1 MB को लिख सकते हो 10 पावर 6 एंड 32 × 10 पावर 3 किलोबाइट्स को। ठीक है, तो देखिए 1 MB को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10 पावर 6, 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 32 इनटू किलोबाइट्स को आप क्या लिख दोगे, 10 पावर 3। तो ये बचेगा 1000 डिवाइडेड बाय 32। तो अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 312.5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, नाउ इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको यूजीसी नेट में भी पूछा गया था ना, यूजीसी नेट में पूछा था कि यदि एक आईपी पैकेट है और जो रिसीवर ने रिसीव किया 8 बिट्स ऑफ द स्टार्टिंग, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल रीजन ऑफ द रिजेक्शन? रिजेक्शन का पॉसिबल रीजन क्या है? तो देखिए, जो फर्स्ट 4 बिट होती है, आपको पता है यदि मैं हेडर की बात करूं, आईपी हेडर, आईपी हेडर में जो फर्स्ट 4 बिट होती है, इट रिप्रेजेंट द वर्जन। तो यहाँ वर्जन क्या मिल रहा है, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू द डेसिमल। सो 1001 इज 4, मतलब वर्जन तो करेक्ट है। ठीक है, वर्जन आपको क्या मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है। एंड 100, सॉरी 00 10, ये आपका क्या हो जाएगा, हेडर साइज। ठीक है, हेडर साइज। नाउ हेडर साइज जो होता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑफ 2 बाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि इट हैव द करेक्ट आईपी वर्जन बट इनकरेक्ट हेडर लेंथ। करेक्ट हेडर लेंथ क्या होती है, अभी IPv4 पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये नया पैटर्न एक पकड़ा हुआ है सभी ने। आ, आप चाहे इनकी बात करें, ठीक है, तो इट इज 20 to 60 बाइट। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, 2 बाइट्स। तो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट हेडर लेंथ। ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हेडर लेंथ 20 to 60 बाइट हो सकता है। ये 20 to 60 बाइट। ओके, चलिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ,
Now, which mode of communication is utilized by the Ethernet CSMA CD? So it is half duplex mode. ये आपका हाफ सॉरी फुल ड्यूप्लेक्स मोड में CSMA CD वर्क करता है. देयर इज नो कोलिजन. इट इंश्योर दैट, ठीक है, देयर शुड नॉट बी नो कोलिजन, सो इट कैन वर्क इन द फुल ड्यूप्लेक्स मोड. ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट वी हैव विच सर्चिंग ग्राफ यूजिंग द DFS एंड BFS. ठीक है, सर्चिंग अ ग्राफ यूजिंग द DFS एंड BFS. आप मुझे बताइएगा which of the following is true. DFS always guarantee to shortest path between the two nodes. ये definition है BFS की. BFS always guarantee to find the shortest path between the two nodes. BFS is more memory efficient than DFS. No. In BFS, ठीक है, याद रखिएगा, we need to store the complete graph in the memory. But DFS is, है ना, उल्टा बोल सकते हैं कि DFS is more memory efficient than BFS. DFS is non-recursive and BFS is recursive. Both are recursive. ठीक है. Now, yes, this is the correct option. BFS explore all the neighbor nodes and before moving to the next level. जब आप BFS ट्रेवर्सल करते हो, यदि मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये सपोज आपका ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, एंड दिस इज योर ग्राफ, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है. तो जब आप BFS ट्रेवर्सल करोगे, सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड, तो आई विल विजिट इधर बी और सी और डी. ठीक है, पहले मैं या तो ए को विजिट करूंगी, यदि ए से स्टार्ट कर रहे हैं, सो इधर आई कैन विजिट, जो मेरे पास पॉसिबल सीक्वेंस है, सपोज ये आपका बी नोड है, ठीक है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी नोड एंड दिस इज योर डी नोड, ठीक है, एंड सपोज इट इज ई. तो जब हम विजिट करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, एक से या तो बी, ए बी सी डी आपका एक सीक्वेंस हो सकता है, ए सी डी बी आपका एक सीक्वेंस हो सकता है, ए डी सी बी आपका एक सीक्वेंस हो सकता है इन BFS ट्रेवर्सल. बट it will not visit the next level until it will not finish the current level. So BFS explore all the neighboring nodes before moving to the next level. ठीक है, before moving to the next level. Now, what is the primary purpose of Hopfield? तो जो Hopfield है, it is used for the classification. Primary purpose classification में होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AI से. ये जो क्वेश्चन है आपके AI से, ठीक है, होपफील्ड भी AI का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. हिल क्लाइंबिंग इज लोकल सर्च एल्गोरिथम, मीनिंग इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द करंट सॉल्यूशन बाय एक्सप्लोरिंग द नेबर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग. ये हिल क्लाइंबिंग की ही डेफिनेशन है. यस, इट इज ट्रू. हिल क्लाइंबिंग कैन बी अप्लाइड बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. यस, एंड हिल क्लाइंबिंग देयर इज अ प्रॉब्लम इन हिल क्लाइंबिंग, ठीक है, कैन बी ट्रैप्ड इनटू लोकल ऑप्टिमा. याद है आपको प्रॉब्लम्स इन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, लोकल ऑप्टिमा में ये आपकी ट्रैप्ड हो सकती है. सो ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. नाउ एक्चुअली इसमें जो है वी वांट टू कंबाइन द फजी सेट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉमनली यूज्ड इन फजी सेट फॉर कंबाइनिंग द फजी सेट. तो बेसिकली it should be power set and Gaussian product. ठीक है, according to me it should be power set and Gaussian product. क्योंकि Gaussian product में आप दो क्या करते हो, you are going to calculate the product of two fuzzy set and that will give you the new product set. ठीक है, and similarly power set क्या होता है, ठीक है, जितने भी सब सेट है उनकी आप जब ग्रुपिंग करते हो तो वो आपका पावर सेट बनता है. तो फजी सेट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन शुड बी डी. ठीक है, आपका डी ऑप्शन होना चाहिए. नाउ देखिए, हाँ, फ्रॉम विच कैन बी इफेक्टिवली यूज टू सिंपल फोनेटिक बेस्ड स्पेल चेकर. फोनेटिक बेस्ड स्पेल चेकर है आपका साउंड एक्स एल्गोरिथम. ठीक है, जो साउंड एक्स एल्गोरिथम है इट इज यूज्ड फॉर सिंपल फोनेटिक बेस्ड स्पेल चेकर. ये आपका NLP का क्वेश्चन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सिंपल फोनेटिक बेस्ड स्पेल चेकर में जो एल्गोरिथम यूज होता है दैट इज कॉल्ड द साउंड एक्स एल्गोरिथम. ये आप लोगों के लिए नए टर्म्स है, इसलिए मैंने सेशन शेड्यूल किया बिकॉज आई एम गेटिंग हियर न्यू क्वेश्चन. फिर a blank space is a collection of written spoken text that serve as a source of linguistic data for analysis and study.
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपस. कॉपस इज अ कलेक्शन ऑफ रिटन या स्पोकन टेक्स्ट दैट सर्व एज सोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा फॉर एनालिसिस एंड स्टडी. Okay. Next, factor that influence the back propagation training, bias, momentum, learning constraints, all of the above. All of the above. Okay. चलिए, इस क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू इन्वॉल्व इन मल्टी एजेंट प्लानिंग इज. Issues involved in multi planning agent representing and planning for the multiple simultaneous access. Yes, different agent will have different action, so we have to plan for them. So answer A तो सही है. And we have to establish the cooperation, coordination and competition among all the agents. Among all the agents. तो आंसर क्या बनेगा? Both 1 and 2. Both 1 and 2. है ना? In a horn clause, an antecedent contain the multiple letters. Horn clause क्या होता है? If there is at least one positive clause, ठीक है, that contain at most one positive clause. With disjunction, इस तरीके से आप लिखते हो. With disjunction, ठीक है. This is your horn clause. ये आपका horn clause है. This is antecedent. Here you have multiple literals, and it is combined with disjunction. So I will call it disjunctive clause. ठीक है, हम इसको क्या कॉल करेंगे? डिसजंक्टिव क्लॉज. Okay, it will be known as disjunctive clause. Now exclusive or perceptron proposition P XOR Q will be true. कब true होगा? Both P and Q are true. Both P और Q are false. Exactly one P and Q is true. All of the above. नहीं, exactly one P और Q, any one of them. ठीक है, आप ऐसे लिखते हो ना, one XOR, ठीक है, 0 is equal to 1. ठीक है, is equal to 1. 1 XOR 0 is equal to 1. Okay, 1 XOR 0 is equal to 1. चलिए, the next question है आपका, for the set of A and B, A minus B is equal to A minus B, A difference B will be equal to A intersection B complement होता है. मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया हुआ है डिस्क्रीट मैथ्स में. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट. और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप ए के लिए कुछ वैल्यू लीजिए, बी के लिए लीजिए और ट्राई करिए, मैच करिए कि वेदर दे हैव इक्वल वैल्यू और नॉट. कैन फाइंड द आंसर. नाउ हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ए बी सी डी जी एफ जी कंटेन द स्ट्रिंग ए बी सी. मतलब मुझे ए बी सी साथ में चाहिए, ए बी सी हमेशा साथ में चाहिए. और फिर उसके बाद आपके 5 लेटर्स बनेंगे. स्ट्रिंग विल बी ए बी सी. तो एबीसी ये कितने तरीके से आ सकती है? एक. और फिर कितने लेटर्स बनेंगे? एक की ग्रुपिंग हो गई, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा +5. तो आप इसको निकाल दीजिए, है ना. टोटल फैक्टोरियल 5, 1 इंटू फैक्टोरियल 5, तो इट विल बी 120. आंसर क्या होगा? 120, है ना. आंसर आपका आएगा 120. Now the next question, a simple path of graph that passes through the every vertex exactly once. If every edge बोलते तो यूलरियन ग्राफ होता. If every vertex बोला है तो हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा. ठीक है, यूलरियन मतलब एज, मतलब मैं आपको सिखाती हूँ ना, यूलरियन कैसे याद रखोगे? एजेस, एवरी एज यदि बोला जाए तो यूलरियन, और एवरी वर्टेक्स यदि बोला जा रहा तो हैमिल्टोनियन. यूनिक और प्लानर आर डिफरेंट. चलिए, इसका भी आंसर मुझे लॉग इन, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी फैक्टोरियल लॉग इन बट नॉट कॉन्फिडेंट. ठीक है. नाउ सी द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप. यदि आप किसी ग्रुप का सब ग्रुप डिफाइन करते हो, यदि आप किसी ग्रुप के लिए सब ग्रुप डिफाइन करते हो, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप शुड डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप शुड डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप.
नाउ हाउ मेनी डिफरेंट बूलियन फंक्शन ऑफ n डिग्री? एक्चुअली होता है 2 पावर 2 पावर n, 2 पावर 2 पावर n. एक्चुअली इट इज रिटन रॉन्ग, ठीक है, बट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 पावर 2 पावर n. ठीक है. नाउ in a LP problem, a solution is known as if one and more decision variable increase indefinitely without violating the feasibility. हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, डिसीजन वेरिएबल है एंड इट इज इंक्रीज इनडेफिनिटली विदाउट वायलेटिंग फिजिबिलिटी. तो दिस केस इज नोन एज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? अनबाउंडेड सॉल्यूशन, है ना. ये आपका ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है. अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन. नाउ बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब आपके in a transportation problem have m row n column, the degeneracy condition where the number of positive variable is basic solution should be less than m plus n minus 1, है ना. ये तो हमने कई बार सॉल्व किया है. m plus n minus 1. which logic gate is known as inverter? 1 इनपुट दोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 दोगे तो 1, सो इट इज विल बी नॉट गेट. ये आपका क्या होता है? नॉट गेट. Now, if there is a multiplexer of n to 1, यदि n to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो कितना इनपुट होगा? सिंपली n इनपुट, है ना. 4x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट देते हैं भाई? इफ यू हैव 4x1 मल्टीप्लेक्सर, सो वी हैव 4 इनपुट, तो आंसर विल बी n. आंसर होगा n. ठीक है. नाउ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर फैब्रिकेटेड इंटीग्रेटेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये तो आपकी सिग्नलिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात हो गई. माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग अगेन आर्किटेक्चर के अंदर करते हैं, सिस्टम के अंदर करते हैं. तो वी वांट टू वर्क ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट. तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इट इज नोन एज द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है, इसको आप बोलते हो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. VLSI इज द करेक्ट आंसर. Now, which error detection correction code is used for polynomial division? Which error correction code is based on polynomial division? Parity check, हम 0 और 1 parity check करते हैं. checksum में भी हम 0 1 पर काम करते हैं. CRC cyclic redundancy code, it is used for the polynomial division. ये polynomial division के लिए यूज होता है. हैमिंग कोड तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, डिवीजन से काम नहीं बनेगा. नेक्स्ट वी हैव हेक्साडेसिमल ऑफ E5 का डेसिमल निकालना था. E5 का डेसिमल. तो देखो 5 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? डेसिमल में कन्वर्ट करना है. हेक्साडेसिमल गिवन है, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 16 पावर 0 प्लस E की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 14, है ना. E वैल्यू क्या होती है? 14. तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो, 14 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 16 पावर 1 से, मतलब 16 से. तो नाउ यू विल गेट, कितना मिलेगा? यू विल गेट 224, 224 प्लस 5, क्योंकि 16 पावर 0 क्या होगा? 0. तो यू विल गेट 5 प्लस 5 इंटू 1, तो इट विल बी 229. ऑप्शन ए. ठीक है, इट विल बी ऑप्शन ए. इज इट क्लियर भाई? कोई पॉइंट रिपीट करना है आप बोल सकते हैं, सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है. Which register is responsible for temporary storing the result of arithmetic and logical operation? नाम से क्लियर है. प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. बिल्कुल भी नहीं होल्ड करेगा इंटरमीडिएट रिजल्ट. क्या पूछ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द टेम्परेरी स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. पहला ऑप्शन था प्रोग्राम काउंटर. इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. memory address, it is used to hold the address to of the instruction that we want to fetch, या current instruction का address होता है. instruction register will have instruction. so finally answer is accumulator. ना, accumulator is the correct answer. now see CPI. CPI recently become more important performance metric than the clock cycle rate processor performance index because, ठीक है, एक्चुअली CPI एंड क्लॉक साइकिल रेट बोथ आर सेम थिंग.
ठीक है, कुछ नया नहीं है। हम इतना और बोलते हैं कि जो सीपीआई है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो सीपीआई का जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। मीनिंग इज दैट इन अ सिंगल क्लॉक, we should execute the one instruction. ठीक है, and clock cycle rate is similar as CPI. Yes, so according to standard the CPI value should be 1. चलिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंसर कर पाएंगे? द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट in microprogram control unit control is usually determined by चलो इसको मैं बता देती हूँ। इट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। एक कैसे डिटरमाइंड होता है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डीएमए? डीएमए क्या डेफिनेशन होती है? देखिए, डीएमए कहाँ वर्क करता है? बिटवीन, ये डीएमए है, ये आपका मैन मेमोरी है और ये आपका सीपीयू है। तो इस सीपीयू को स्किप करते हुए डेटा बस लेता है एंड डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है विद द मेमोरी। तो आंसर बनेगा डीएमए इज अ मैकेनिज्म दैट इनेबल मल्टी थ्रेडिंग एंड पैरेलल, नहीं सॉरी, डीएमए अलाउ द पेरिफेरल डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हम डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मेमोरी। ठीक है, चलिए, नाउ ये क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में भी पूछा गया था 2021 में। इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विद प्राइवेट कैशे, हर एक सिस्टम का, हाँ वेरी गुड मैम, वेरी गुड, इन अ प्राइवेट कैशे, ठीक है, हर एक, एवरी माइक्रो प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर हैव द इट्स ओन कैशे, हर एक प्रोसेसर के पास अपना प्राइवेट कैशे है। So how to achieve the mechanism commonly used to maintain the coherence? मतलब what we want कि if they are taking the value of any variable and it is shared by all the processor, so how we can maintain the coherence? If this value is going to be changed, it should be reflected into every processor, हर एक प्रोसेसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हाउ डू वी अचीव दिस? ठीक है, हाउ डू वी अचीव दिस? तो इसके लिए आप यूज करते हो स्नूपिंग प्रोटोकॉल। इसके लिए आप यूज करते हैं स्नूपिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, वी यूज द स्नूपिंग प्रोटोकॉल। यस, चलिए, नाउ OpenGL वाज रिलीज बाय सिलिकॉन ग्राफिक्स, से हम नहीं पढ़ते हैं। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इट इज द पार्ट ऑफ XML लैंग्वेज, याद रखिएगा XML इज इन सिलेबस। 133 का आंसर आप करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। And be ready for more MCQ series. I'm going to start very soon for the UGC NET examination. ऑलरेडी डेली मॉक टेस्ट रनिंग है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। मुश्किल से 10 मिनट्स आपको स्पेंड करने होते हैं एंड देन यू विल गेट द मोर क्वेश्चन एंड डेली 10 और 15 मिनट स्पेंड करना इज वर्थ। ठीक है, वो आपको जरूर रिजल्ट देगा और यू कैन क्वालिफाई सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट सॉल्विंग द डेली मॉक टेस्ट एट द ऐप डाउनलोड कर लीजिए। If you are interested for the full length course, it is also running. For detail you can connect with me. ठीक है, मोबाइल नंबर आप सभी के पास है। चलिए, तो आंसर क्या होगा? अभी तक नहीं दिया। यूनिफाइड यूएमएल क्या है? अभी रिसेंटली आपको वीडियो भी शेयर किया था भाई, यूट्यूब पर वीडियो है यूएमएल का, चेक करिएगा। इट इज विजुअल मॉडलिंग टूल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कंपाइलर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये है क्या? ये है विजुअल मॉडलिंग टूल्स, है ना। आप क्लास डायग्राम ड्रॉ करते हो, सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करते हो, so it is visual modeling tools. Now 134 आंसर करिए। कंस्ट्रक्टर इज नॉट यूज्ड इन, कंस्ट्रक्टर इज नॉट यूज्ड इन सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और C# लैंग्वेज।
किसमें आपका कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता? वेरी गुड आशुतोष सर। Constructor is not used in procedure oriented programming. Now what is procedure oriented programming? It is C language. C++, Java, C has have the, yes, it is C. C में constructor नहीं होता भाई, बाकी होता है, ठीक है। Now ये अभी मैंने आप लोगों को जो C की मॉक टेस्ट आपको दिया था, इन C++ short occupy the 2 byte. तो 2 बाइट की रेंज क्या होगी? 2 बाइट की रेंज क्या होगा? हाँ, सी लैंग्वेज -2 पावर 16 -2 पावर 16 टू -1 एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, बट इन्होंने -1 नहीं किया है, 2 2 पावर 16 तक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। -2 प्लस होता है ये, बट भाई इट शुड बी 767 से स्टार्ट होगा, ये 767 से है ना, बट ठीक है, आप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपका डबल का रेंज हो जाता होगा, ये डबल का है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन ए है। ओके, नाउ विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++? विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, है ना? अरिथमेटिक, रिलेशनल, स्कोप एंड सबस्क्रिप्ट। इट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, स्कोप रिजोल्यूशन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। नाउ सी दिस क्वेश्चन, the valid statement about XML. All XML element can be properly closed. Yes, यदि आपने कुछ ओपन किया है, जो टैग आपने ओपन किया है, it should be closed properly. It should be closed properly. तो ये तो सही है. All XML, it must be, yes. जो टैग्स आप लिखते हो, it should be in the lower case. तो ये भी ट्रू है. And XML must have the DTD. DTD means document. It should support the document type definition. तो ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू, ये ऑल ऑफ दी अबव ट्रू है। चलिए भाई, चलो आंसर दोगे? रिसेंटली ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, अरे का आंसर 138। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द लर्नर्स, बिकॉज आई हैव शेयर्ड 3 सेशन ऑन द सी प्रैक्टिस। मैंने 3 डिफरेंट सेशन आपको शेयर किए हैं। इन द वीडियो सेक्शन आप चेक कर सकते हो कि हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, how to solve such kind of question. So what they are saying कि we want to assign 100 first element in the following array. जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमको क्या करना है, जो भी अरे हमने बनाया है, लाइक दिस इज द अरे, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है, यहाँ भी क्या है 10 है, तो वी वांट टू स्टोर 100 हियर, ठीक है, 100 हियर। सो कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो देखो, यू कैन राइट A0, यस इट विल बी करेक्ट, इट इज इक्वल टू A0। या यदि आप इस तरीके से भी लिखे ना, मैं आपको बताती हूँ, यदि आप इस तरीके से लिख रहे हो A0 इट इज इक्विवेलेंट टू 0A। रीजन क्या है, किसी को याद है? एंड इट इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, ठीक है। तो ऑल दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बस अब आपका आता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो देखो, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू कितनी है भाई 1 अकॉर्डिंग टू देम, -1A का मतलब हो जाएगा 20 को माइनस कर रहे हैं, 20 को माइनस कर रहे हैं, एंड इसमें फिर हम असाइन कर रहे हैं 100, तो इट इज इनवैलिड। ये आपका इनवैलिड, ये आपका इनवैलिड, ऑप्शन 1 इनवैलिड है, ठीक है। ये आई की वैल्यू 1A का मतलब है वी आर एक्सेसिंग द सेकेंड एलिमेंट, है ना, इंडेक्स 1 को हम एक्सेस कर रहे हैं और उसको माइनस कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड, देखना है। इस तरीके के यदि और क्वेश्चंस आपको देखना है तो आप बिल्कुल फ्री चले जाइए, एंड जो YouTube चैनल है, ठीक है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर जाओगे तो इन YouTube चैनल रिसेंटली आई हैव प्रोवाइडेड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आपको रिसेंटली यहाँ पर मिल जाएगा इन द वीडियो सेक्शन। वीडियोस पर जाइएगा एंड इन वीडियो सेक्शन देखिए, ये रहे आपके प्रोग्रामिंग इन सी डेली मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट। That's why I'm saying attend these mock test. It will be very helpful. ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपको। Now
ये तो आप आंसर कर सकते हो. व्हाट इज आंसर ऑफ 139? व्हाट इज द आंसर ऑफ 139 विच इज नॉट अ लूप इन सी? एंड जब भी सेशन को देखे, डू लाइक इट, डू शेयर विद योर फ्रेंड, है ना, एंड अपना फीडबैक जरूर दे. विच इज नॉट लूप इन सी. फॉर लूप होता है, डू वाइल होता है, वाइल होता है, बट देयर इज नो लूप लाइक until repeat. Very good, Ashutosh ji. Which of the following is computer graphics curve? Bezier curve. Bezier curve. Implicit is nothing, explicit is nothing. ठीक है, एलिमिनेशन से भी हो जाएगा. Okay, very good. A collection of concepts that can be used to describe the structure of database. Structure of database कैसे describe करते हैं? With the help of data model. ER model है, it describe the structure of database, है ना. So yes, we use the data model to describe the. Now see this question. To find the detail of all employee where the salary is 50,000, which of the following tuple calculus expression is correct? तो जब आप टपल कैलकुलस लिखते हैं, वी शुड यूज लाइक दिस. ठीक है, हमको इस तरीके से लिखना होता है कि रिजल्ट आपका क्या जनरेट होगा. इट विल बी अ टपल टी एंड कंडीशन क्या होगी कि जो एम्प्लॉय है ना, ऑल एम्प्लॉय को आपको निकालना है, तो शुड बी टपल शुड बी टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉय रिलेशन. एंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी टपल आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर दैट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हियर टी इज मिसिंग. ठीक है, इस तरीके से जब आप करली ब्रैकेट लगा के और टी को आप स्पेसिफाई करते हो, व्हाट रिजल्ट यू वांट इन द टपल, तो यहाँ ये मिसिंग है. ऑप्शन we have select employee, we have to specify tuple t. Here both the things are missing. All of the above तो वैसे भी नहीं हो सकता. चलो ऑप्शन 143, it will be from your side. 143 का आंसर ER diagram derived attribute. ER diagram derived attribute. ER diagram derived attribute. Yes, derived attribute is dotted oval. Derived attribute from the dotted oval. ठीक है, डॉटेड इस तरीके से ओवल बनाते हो ना. एज इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कैसे लिखा रहता है ऐसे, एज इज ड्राइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ. नाउ सी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. So a relation RABCD is given and functional dependency is given. Determine which of the dependency shown cannot be derived from these dependency. ठीक है, तो मेरा आज थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं राइटिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें. ठीक है, चलिए. तो इस टाइप के जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बोल रहे वेदर AC डिराइव D इज करेक्ट और नॉट. ये AC डिराइव D करेक्ट है या नहीं. क्या करें, हम लिखे AC का क्लोजर, हम निकाले AC का क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर. सो A कैन डिटरमाइन A itself, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा. From this I know A can determine B. Yes, A can determine B and C is there, so C can determine C as well. And now BC can determine D. BC can determine D. So can I write AC can determine D? Yes, I can write. Can I write AC can determine B? Yes, I can write. So ये तो आपकी दोनों ऑप्शन ट्रू है, दोनों ऑप्शन ट्रू है. ठीक है, नाउ अब आपसे पूछ रहे हैं क्या बी डिटरमाइन डी ट्रू है. तो अब आप एक काम करें, फिर से क्लोजर निकाल लीजिए बी का क्लोजर. ठीक है, बी का क्लोजर. तो नाउ बी क्लोजर वी कैन ओनली डिटरमाइन बी. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना. इसमें वेरी गुड निगाह मैम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना. ये आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. गॉट इट. चलिए, वेरी गुड. हाँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली. अ गिवन पॉपुलेशन of event or item partition into set of similar element is known as pattern with the item series, clustering, classification or association. So when you are performing grouping
on the basis on the similarity of the item, it is called the clustering. When we perform the grouping basis on the similarity of items, it is called the clustering. ठीक है भाई? Now see, a database which permit the database system to store the history. Time factor आया, टाइम फैक्टर आया और मैंने टाइम फैक्टर के लिए आपको कुछ बताया हुआ है, so you can answer it. So a database which permit the database system to store history of changes and allow the user query both current and past state, then it is called the temporal database. Yes, very good. Then it is called the temporal database. स्पेशल रखता है जियोग्राफिकल डेटाबेस. डिडक्टिव आपका होता है क्लॉज बेस्ड. एक्सपर्ट डेटा सिस्टम आप यूज करते हो इन द एआई, सो इट इज योर टेम्परल, टाइम रिलेटेड. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ यदि आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की है कभी, सो दिस इज व्हाट मॉडल फॉर द मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गैलेक्सी. गैलेक्सी देखो, स्टार को तो स्टार्ट कुछ नहीं होता, स्टार्ट इज इनकरेक्ट, इट शुड बी स्टार स्कीमा. तो स्टार स्कीमा कैन नॉट बी गैलेक्सी. स्टार से जब आप मल्टीपल स्टार्स को कंबाइन करोगे, दैट विल बिकम द गैलेक्सी. तो वी कंबाइन द मल्टीपल स्टार स्कीमा इनटू द फैक्ट कॉन्स्टेलेशन, इनटू फैक्ट कॉन्स्टेलेशन. तो आंसर क्या होगा? सी. स्नोफ्लैक क्या होता है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टार. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टार जिसमें जो रिडंडेंसी है उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो स्नोफ्लैक इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्टार. ओके, स्टार में क्या होता है? फैक्ट टेबल होता है इन द सेंटर एंड चारों तरफ आपका हो जाता है डायमेंशन, डायमेंशन टेबल, जिसको आपने बोला स्टार. एंड यदि ये डायमेंशन टेबल को आपने फर्दर स्प्लिट कर दिया तो ये बन गया स्नोफ्लैक. और यदि आपने दो फैक्ट टेबल को या दो से ज्यादा फैक्ट टेबल को कंबाइन किया फॉर शेयरिंग द डायमेंशन टेबल, इट विल बी नोन एज द फैक्ट कॉन्स्टेलेशन या इट विल बी नोन एज द गैलेक्सी. वेरी गुड. In data warehouse, data sources can be constructed. Data warehouse, data source can be constructed. Different schema and data model, है ना? अलग अलग schema और data model को combine करते हैं. Now 149, blank space is the man file that derive the map reduce process. मतलब it will call the mappers as well as reducer. Man file की बात हो रही है. Man file, so it is known as the executor. ठीक है, ये आपका executor होता है. Now the last question, ठीक है, a database that has set of associated trigger, set of associated trigger is called the active database. Okay, so this was the complete paper solution of MP set. Everyone please check कर ली यदि आपने beginnings check नहीं की है ना? और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था. Here you will find the मॉक टेस्ट. ठीक है, आपको यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा. एंड यस, वेरी गुड, इट इज एग्जीक्यूटर. You will get the daily mock test for the upcoming examination. You will get the complete courses if you wanted to join. And for any query, even though you are doing the self study, ठीक है, you can ask your query on this number. And there is a discussion group as well over the app. तो वहां पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो. So this app, the link of the app is given in the description box. एमपी सेट मैम वही पैटर्न होता है. ठीक है, 50 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2. तो अभी हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना? चलिए, एनी डाउट, एनी क्वेरी? टोटल 150 होते हैं. हाँ, टोटल 150. ओके, सो वी हैव क्लास एट 6:30 PM. तो जो मेरे यहाँ रेगुलर लर्नर्स हैं, बी देयर एट 6:30 PM. वी विल कंटिन्यू. 100 हो जाएगा पेपर 2 एंड 50 होगा आपका पेपर 1. यस, everyone please let me know any doubt and do like the session को like भी करें and अपना feedback जरूर दें. it will be helpful for me. ठीक है, and like it also motivate me to conduct such sessions. In upcoming session I will provide you the solution of other
सेट एग्जाम एज वेल। नेट का सीरीज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अक्टूबर। अपकमिंग अक्टूबर में हम नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द एग्जाम विल बी इन दिसंबर। ठीक है, एग्जाम दिसंबर में। टिल देन वी विल डू द डेली मॉक टेस्ट। तो डेली मॉक टेस्ट, इन डेली मॉक टेस्ट वी आर कवरिंग द सब्जेक्ट्स। So till now we have we have done with the OS. Sonia ma'am, thank you everyone. Nigaa ma'am. So OS is done, software engineering is done, C programming is done. ठीक है, अभी आप कंटिन्यू करिए, और भी सेशन और भी सब्जेक्ट अपकमिंग है, okay, बट रेगुलर इन द मॉक टेस्ट। So I think there is no doubt, सेशन एंड होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।